So today we are going to take one question and we are going to solve it by using graphical method. So let's start writing the question and then we'll solve it by graphical method. Wait a second. So the question is uh, maximize z is equal to 20x1 plus 30x2. The subject to constants. Are you able to see whatever I am writing on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So subject to constants are 2x1 plus 14x2 should be less than or equal to 56 and 3x1 plus 5x2 should be less than or equal to 90 and 4x1 plus 3x2 should be uh, less than or equal to 72. Okay. Let's make it 560 less than or equal to 560 and this will be okay. This will be yeah, and the last x1 comma x2 should be greater or equal to 0. Okay. So सबसे पहले क्या करना होगा हमें? Can anyone please tell me? सर एक को जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। एक को जीरो अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि हमें सर इन तीनों कांस्टेंट, वी हैव थ्री कांस्टेंट्स 1 2 एंड 3, हमें इन तीनों कांस्टेंट्स के लिए पॉइंट्स निकाल रहे हैं ताकि हम इनकी लाइन ड्रॉ कर सकें, राइट? यस और नो? यस सर। Right? So how we'll draw the lines? I mean how we'll find the points? I'll take first constant. मैं सबसे पहला constant लूँगा 2x1 plus 14x2 should be less than or equal to 560. Okay. So what all points I'll get? The easiest way to get the point is एक बार x1 को 0 ले लेते हैं. So if I put x1 is equal to 0 over here, what I'll get? 4. 4. Yes, sir. 560 divided by 4, 14 is 4, right? Is it right? सर इट्स 40। 40. बेटा it is 560 not 56, हमने उसको 560 कर दिया था, Okay, sir. है ना? Okay. So x2 is 0, then x1 सर 280। 280. Okay. चलो लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं. It will be 280. Okay. Then we'll take the second one, 3x1 plus 5x2 less than or equal to 90. Okay, tell me what are the points you'll get? Okay, can we make it चलो ठीक है, no issues. Okay, so x1 x2 बताइए, points बताइए फटाफट. x1 0, x2 will be 0 18
18. 18. Okay. And x2 0, x1 30. Sir, 30. 30. 30. Okay. Then we'll have the third one, 4x1 plus 3x2 less than or equal to 72. Okay, so yes, points. 0, 24. x1, x2. If I put x1 is equal to 0, I'll get 24 24. x2. And if I put x2 is equal to 0, what I'll get? 18. 18. Okay. Yeah. So these are the points I'll get. सही है यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम पॉइंट्स निकालने में? No, sir. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया है? बिकॉज आई नीड टू रब इट फ्रॉम दिस स्क्रीन. Yes, sir. ठीक है, पॉइंट्स वगैरह Yes, सब sir. लिख लिए बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू दीज पॉइंट्स बिकॉज आई विल नॉट बी हैविंग दीज पॉइंट्स नाउ वंस आई रब देम. ठीक है, ओके, राइट. सो नाउ हमें इनका एक एक कांस्टेंट का ग्राफ प्लॉट करना है. सो हाउ विल डू इट? लेट्स सी. This is my x2 and this will become my x1 okay, this will become my origin 0 0. This is ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, इसको प्लीज स्ट्रेट रखिएगा. So this will be your x2 and this will be your x1. ठीक है. Now scale, क्या स्केल लेना चाहिए हमें बताइए? As per the points available to us. हमारे पास एक बहुत 50 बड़ा will be पॉइंट भी है, appropriate. 280 भी आया हुआ है अपने पास में. 50 is appropriate. 50 will be appropriate. So let's Sir, हाँ 20 सही रहेगा क्या? 20 और Sir, 20. Yes, sir. It will be much longer in the height. as Yes, you say, वो भी. as you say. बताइए क्या पॉइंट्स लूँ मैं यहाँ? सर 30 एक बार देख सकते हैं क्या सर? 30, 20 और 30. 30. आप अपने पास मैक्सिमम कितना है x1 में? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू वी हैव इन x1? सर मैक्सिमम 280. वैल्यू 280. 280. So if we take 330, so we'll have to take around 9 points. So हमें ये इसको बड़ा करना पड़ेगा. In Wait. that case, take 40 also. हाँ, wait. एक मिनट. क्योंकि वो फिर पॉइंट पे आएगा ना, बीच में भी नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा. 280 से डिवाइड हो जाएगा. सही. Yes, yes sir. So what should I take? 40 or 30? 40. बताइए. ओके सर, ऐसी भी. नो नो, यू टेल मी. नो इश्यूज. जो आप बोलेंगे. सी ग्राफ तो हर तरह से बनेगा, चाहे हम स्केल कैसा भी ले लें. बताइए आप, जो भी आप लोग बोलेंगे. हाँ सर. सर एक
हाँ हाँ 40 भी ले सकते हैं सर, कोई इश्यू नहीं। 40. This will be your x2, this will be your x1. So I am taking 40. So 1, 2, 3, 4, 5. I mean, in 40 we'll have to take, I mean, around 7 points, right? Because the maximum value is 280. यस सर। Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and let's suppose 8. So this will be a 40. Then we'll have 80. We'll have 120. 0, 40. Sorry. Okay. 160, 200, 240, 280, 320. Similarly, we'll take over here 40. Yeah, or you change it the way you want. What is the maximum value in x2? 40. 40. Okay. So can we take it like 5, 5? Yes, sir. I mean, it is not necessary that whatever scale you take on x1, you will have to take it on x2. That totally depends Yeah. on you. So 5, 10, 15, 20, 25. I'll have to make one more over there and over here. So 30, 35, and let me rub it. No, it is actually 5 in this. Okay, so Sir, I think like we should take a x1 from 20. Like there's a value 18 and 30 also. we can take it in between somewhere over here. Yeah, I mean you can Yeah, we take can take, but the more clear you are with the scale, the beauty yeah, of the graph will be increased. So it totally depends on you. 40 लेकर भी graph बनेगा, 30 लेकर भी yeah, graph but बनेगा. it's confused between like 30, 18 and 30. बिल्कुल होगा. 18 and 30 we will have to take 18 somewhere over here. We'll have to take 30 Yeah, somewhere far from that. So you can take it like I mean, what you want to take? like 20, Ah, like 18 and you 20. can take It's not 20. confusing. You make Yeah. your graph according to 20. No issues in that. No issues in that. Okay, sir. Right. So what is the first constant के point बताइए क्या थे? What were the points for the first constant? First constant का first Sir, point बोलिए. 0 and 40. 40। 0 and 40. So 40 will be there. ठीक है. All right. I'll change the color of the pencil. No issues. So 40, 0, 40 is this, and what is the second point? 280. 280 will come over here. इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि सर ये कैसे आया? No. No, sir. नो सर। कल वीडियो में वो जो था उसमें भी क्लियरली बताया हुआ था. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. सो आई एम जस्ट ईटिंग दीज पॉइंट्स. ठीक है. और इसके ऊपर आप इसकी इक्वेशन मेंशन कर दीजिए. मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या इक्वेशन थी इसकी? 2x1 plus 14x2 less than equal to 560. 2x1 plus 14x2 sorry, less than or equal to 560.
Okay, now what will be the area for this line? What will be the area of the point which will satisfy this inequality? लोअर एरिया लोअर एरिया. ये एरिया कंसिडरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम कि कैसे आया सर? नो सर. Very good. सर So I am just putting certain arrow just to show that the area for this line will be lower area towards origin. ठीक है, ये आपका origin था. Yeah, second line. First point for the second line. 0 18 0 and 18. 0 and 18. 1 8. Okay, so it will be somewhere Yes, sir. over here. Let's suppose. Okay, what is the second point? 30 and 0. 30 and 0. So 30 will come somewhere over here. Now we'll draw a line. Okay, what is the equation? Three x 1 plus 5x2 less than 3x1 and equals to 90. 5x2 less than or equals to 90. Yes. Yes. So which will be the area? लोअर एरिया Lower area means towards origin, right? Done. Third line. 0 and 24. 0 and 24. So 24 will be somewhere over here. That's nearby 25. Okay. And the second one? 18 and 0. 1 8 and 0. अब यहाँ पे देखिए अपना ग्राफ बहुत ही क्या बोलते हैं उसका, कंजस्टेड हो जाएगा. तो अगर हम स्केल और अच्छा लेते 20 बिकॉज मेरे पास स्क्रीन स्पेस थोड़ी लिमिटेड थी, इसलिए मैंने 40 वाले पे एग्री किया. आप इसको 10 लेकर भी, अगर आपकी कॉपी में स्पेस अच्छा खासा है, यू हैव स्केल, तो आप अच्छे से इसको प्लॉट कर सकते हैं. आपके पास में पूरा वो फिजिकल स्केल भी होगा, आप उसको यूज़ करके अच्छे से पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो स्केल आप जितना अच्छा लेंगे आपका ग्राफ उतना ब्यूटीफुल होगा. अब यहाँ पे 40 लेने की वजह से देखिए क्या होगा, 0 18 नहीं 18 0, राइट? So 18 0 will be somewhere around, let's suppose over here. So ये लाइन मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से होते हुए and this will come over. Yeah. ठीक है. एंड इसकी इक्वेशन मैं यहाँ नहीं लिखूँगा बट आप लिख लीजिएगा whatever the. अच्छा, एरिया क्या होगा इसका? अगेन सिंस इट्स अ लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी. ओके, टेल मी द इक्वेशन. कौन सी इनइक्वालिटी थी ये? Tell me the 4x. sorry 4x1 plus 4x1 हाँ plus 3x2 3x2 less than equal to less 7 than less than equal to 72 72. Okay, it is again less than equal to, so the area towards origin or the lower area or the left area, whatever the way you like. Okay, so यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर. No problem at all. Okay, very good. So now what we'll do, कोई बता सकता है जिसने कल वीडियो देखा हो? सर जो ये जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका कॉमन पॉइंट और अभी निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू फाइंड अ feasible region, a common area where which the area in which all the points will satisfy all these three constraint. इन तीनों inequalities को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों inequalities को, इन तीनों constraints को satisfy करने वाले एरिया को हमें फाइंड आउट करना है.
वी कॉल इट कॉमन एरिया, वी कॉल इट फिजिबल रीजन. ठीक है. Yes. Yes, sir. Yeah. So we will find the common area, will find the feasible region out of these three areas of these lines. So आप बताइए इन तीनों में कॉमन एरिया मतलब वो एरिया जो इन तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करे. लेट्स डू अ हिट एंड ट्रायल. इफ आई टेक दिस एरिया एज द कॉमन एरिया. ओके, थोड़ा डार्क लेते हैं. If I take this as a common area, ये is it a common area? इस No, sir. एरिया No, sir. में के पॉइंट्स किसको प्रॉब्लम है इससे? इस एरिया से कौन सी लाइन को प्रॉब्लम होगी? सर 3x वाली भी और दोनों बाकी दोनों. मतलब बची हुई दोनों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि सर ये वाला एरिया इन दोनों लाइंस के बाहर है. प्लीज इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ग्राफिकल मेथड पूरा आ जाएगा अगर ये आ गया तो यानी ये नहीं हो सकता. इफ आई टेक दिस एज अ कॉमन एरिया, किस किस लाइन को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? इफ आई टेक दिस एज अ कॉमन एरिया, सर पहली दो को प्रॉब्लम नहीं होगी. पहली दो को प्रॉब्लम नहीं होगी मतलब 2x लेस देन इक्वल टू 560 को प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन इक्वल टू 90 को प्रॉब्लम नहीं है. बट सर इसके तो बाहर हो गया तो ये भी कॉमन नहीं हो सकता. सो दिस कैन नॉट बी योर कॉमन एरिया, दिस कैन नॉट बी योर कॉमन एरिया. हमने चेक कर लिया. ऐसे क्रॉस नहीं लगाना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ लगा के. ओके, सो नाउ विच एरिया इज लेफ्ट? दिस वन. ये अच्छा, यहाँ पे एक एरिया और ये बन रहा है. क्या मैं इसको कॉमन एरिया ले सकता हूँ? ये स्मॉल छोटा. नो सर, नो सर. इसको इस एरिया से किस लाइन को प्रॉब्लम है? सेकंड लाइन को. लेस देन इक्वल टू 90. Yes, sir. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. आई थिंक आप मैक्सिमम लोगों जो जवाब दे रहे हैं उनको ये समझ में आ गया है. दैट्स रियली गुड. आप ये मान के चलिए अराउंड QT के पेपर में आपने मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मार्क्स अपने नाम कर लिए हैं अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो. यस, बताइए. सो द कॉमन एरिया विल बी this one, starting from this. Yes, sir. And will go like this, this and this. That is why I have taken it on paint, because we have different color combinations and we can segregate it accordingly. है ना, ये हो राइट. सो इस तरह से आपको उसको थोड़ा सा डार्क या फिल करके ब्लैक पेन से या पेंसिल वॉट एवर अवेलेबल टू यू, यू जस्ट हाईलाइट द कॉमन एरिया एंड द बाउंड्री ऑफ द कॉमन एरिया. बाउंड्री ऑफ द कॉमन एरिया मीन्स यहाँ से स्टार्ट होके ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक, एंड सॉरी ये थोड़ा नीचे चला गया, इसको ऊपर ले लेते हैं यहाँ, एंड from this point to this, there it is, and from this to this, yes, and from this to this, and इसको अच्छे से आप लोग फिल कर दीजिए. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए बेटा. यस, नो, No, sir. नो सर. No, sir. नो प्रॉब्लम. एंड इसको आप बोल देंगे feasible region. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हम करेंगे जो अभी किसी ने बोला था कि सर वी विल फाइंड दी. अब हम इस बाउंड्री के अलोंग चलेंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम, लेट सपोज विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 0. सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस.
दिस विल बी माय फर्स्ट पॉइंट। हम हर उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे जहाँ पे टू लाइंस या टू एक्सेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x1 और x2 दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वन पॉइंट इज दिस। देन मैं इस कॉमन एरिया की बाउंड्री पे चला, आई हैव अनदर पॉइंट ओवर हेयर। इस पॉइंट को मैंने ए नेमिंग कर दी, कैपिटल ए। देन मैं ऊपर चला, अभी तक मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड इफ़ यू रिमेंबर आपके पास में यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा, यहाँ Yes, पे sir. दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। मैं इसको लूँगा थर्ड पॉइंट विच इज़ बी, एंड देन अगेन मूव किया, आई हैव दिस वन ऑल्सो सी, एंड नीचे आ गया तो वापस ओ पे आ गया। सो आई हैव अ फिजिबल रीजन ओ ए बी सी and O again. So I have 4 points O, A, B and C. ठीक है। अच्छा, O के कोऑर्डिनेट्स क्या है? O लाइन के पॉइंट्स क्या है? So 0 0. O पॉइंट 0 0. 0 0. Very good. Now talk about A. Do we know the coordinates of A? 30 0. Yes, sir. 30 comma 0. 30 comma 30 और 18, please check. सर 18 30 and 18. सर 18-0। प्लीज आई मीन रीचेक। केवल एक ने सही बोला है अभी 18-0। ये आप ए पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमने थर्ड लाइन बनाई थी, इसका पॉइंट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या था ये। Yes, sir. 18 0. हाँ 18,0। समझ आ गया 18,0 क्यों होगा? क्लियर है, आपने खुद ने ड्रॉ किया था इसको, Yes, sir. है ना? Yes, sir. देन वी हैव बी। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है अभी, छोड़िए अभी उसको। एंड सी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलिए। Sir, 0 18. 0-18। 0 Yes, sir. 0 18. ओके 0,18। सो ये ओ ए और सी के कोऑर्डिनेट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो, वेरी गुड। सो नाउ वी हैव टू फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सो बी के कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना होगा? बी पॉइंट पे जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप उनकी इक्वेशन ले लीजिए। कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पे? 3x1 plus 5x2 less than equal to 90। 3x1 plus 5x2, मैं इसको अभी इक्वालिटी में ले रहा हूँ, लेट्स सपोज, है ना, इक्वल टू 90। एंड सेकंड इज 4x1 plus 3x2 equal to 72। Equal to 7. 4x1 plus 3x2 is equal to 72। अब हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में जो हमारी ब्रिज सॉर्ट ऑफ क्लासेस होती थी और वो सब होती थी, उसमें हमने इनको सॉल्व करना सीखा है। विल सॉल्व दीज टू इक्वेशन, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे पहले ये बताइए, किसको इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू निकालना नहीं आता? अगर आता है अपना शुरू कर दीजिए, जिनको नहीं, आई वॉन्ट देम टू स्पीक। We have substitution method, we have elimination method, if you remember। तो उसके हिसाब से हमने ये 9-10 में भी पढ़ा है, और अभी जब हमने हमारी क्लासेस स्टार्ट करी थी तो स्टार्टिंग की 6-7 क्लासेस हमने इन्हीं चीज़ों में लगाई थी। रिमेंबर, याद है किसी को जो शुरू से आ रहे हैं? यस सर। है ना, और उनके रिकॉर्डेड वीडियो अपने यूईएम जयपुर के चैनल पे भी पड़े हैं। सो यू कैन गो एंड चेक, और वहाँ से आप इनको रिकॉल कर सकते हैं। वो इसीलिए किया था बेटा, उस टाइम पे लग रहा होगा आपको कि सर 9-10 की चीज़ें क्या एमबीए में पढ़ा रहे हो। द थिंग इज दिस कि ये बीच में काम आने वाली है। सर नो सर। हाँ बेटा, सर 1 मंथ इसी में आपने पढ़ाया था, 1 मंथ। हाँ वो इसीलिए था बिकॉज रीकैप जरूरी था, बिकॉज आई नो यहाँ पे आकर के कई लोगों को प्रॉब्लम होती। आई एम नॉट सेइंग कि सबको नहीं आता Yes, था, sir. बट कुछ लोगों को जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। सो Yes. इट वाज फ्रूटफुल। अब लग रहा होगा आपको कि हाँ उस टाइम पे पढ़ाना ठीक था। यस सर। या सो बताइए, फटाफट मुझे आंसर बताइए, देखें क्या पॉइंट्स आए। एंड ओके, 144/11। x1 is 144/11। 11। ओके चलिए ठीक है। x2 is 90।
x2 is x1 is 90, x1 is 90 and x2 is 144 by 11. ओके एक बार रीचेक करिए. समवन इज सेइंग x1 इज 90, x2 इज 144 by 11. आई वांट एवरीवन टू कंफर्म कि ये सही है या नहीं. x1 is 90 and x2 is 144 by 11. आराम से निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है. टेक योर टाइम. Sir, x1 equal to 90 and x2 equal to 144 upon 11. ओके सो 2 people have confirmed this. जब सब लोग निकाल लें तो मुझे बताइएगा. वी विल मूव अहेड. So x equals to 90 and x2 equals to 144 upon 11. वेरी गुड, वेरी गुड. सो मेजॉरिटी ऑफ Sir, द पीपल. x1 is equals to 90 and x2 is equals to 144 divided by 11. Very good. So majority of the people have confirmed it. So I am taking it like 90, 144 by 11. ये points लिख लिए आप लोगों ने. Yes sir. ठीक है. ये चारों पॉइंट्स निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम सर कैसे पता चला, या अभी तक जितना भी हमने इस क्वेश्चन को किया है, डू एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? यस, नो? सर ये जो पॉइंट्स है जैसे 144 by 11 है, इसको प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम है. प्लॉट करेंगे नहीं ना, इसको प्लॉट करना ही नहीं अपने को. बस इसको ऐसे कैसे ले लेना है. मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है. हाँ, इसको प्लॉट करना ही नहीं है अपने को. इसको एज इट इज ले लेना है. और अगर बाई चांस ये अपना फाइनल आंसर आता है तो इसको हम फिर अप्रोक्सीमेट कर देंगे. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे है कि कितने प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट बनानी चाहिए, तो उसका आंसर आप ऐसे देंगे 144 by 11. नहीं, आप 144 को 11 से डिवाइड करेंगे. जो भी अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा होगा उसके नियरेस्ट आप हाईएस्ट वैल्यू दे देंगे. सपोज इसका आंसर कितना आएगा, लेट सपोज 1 and 3, 13 पॉइंट समथिंग आएगा इसका. यस सर. है ना. सो 13 पॉइंट समथिंग मीन्स सर 14 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली. लेकिन वो तब करेंगे जब ये बी हमारा फाइनल आंसर आता है. तो अभी हमें इसको कहीं प्लॉट नहीं करना. ओ, ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? लास्ट टाइम आई एम आस्किंग. नो, यस, कुछ तो बोलिए बेटा. नो सर. राइट. No, सो sir. ओके. और ये नोट कर लिए आपने अपने पास में अभी, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट. Yes, sir. ठीक है. सो ऑल राइट. यस. सो नाउ टेल मी द पॉइंट्स. फर्स्ट वाज ओ 0 0. सेकंड वाज ए, आई थिंक 18 0. Yes, sir. बी वाज 90, 144 by 11. 144 by 11. Okay. And C was 018. 018. 0,18. Okay. So now I'll make a sort of a table. It's not like a set format. आप कैसे भी कर सकते हैं. So what is the objective function? Maximize G is equal to 20x1 plus 30x2. 20x1 plus 30x2. So now what I'll do, I'll put these values. This is x1, this is x2. So O point के लिए z की वैल्यू क्या होगी, ये तो क्लियर सबको पता है. 20 into 0 plus 30 into 0, which will become 0 plus 0, it is equal to 0. Second point A. So z is equal to 20 into 18 plus 30 into 0
कितना 360 360 ओके देन वी हैव बी पॉइंट बताइए इसका कितना आएगा देखिए निकाल के फटाफट 20 इंटू 90 2192.72 प्लस 30 इंटू 144/11 हाँ अब बताइए कितना 2192.72 2192.72 ओके ठीक है एंड द फोर्थ वन इज द लास्ट वन इज सी is 20 into 540. 0 plus 30 into 18 which will become 540 या सो अब बताइए अपना ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ था मैक्सिमाइज और मिनिमाइज Maximize. maximize so what we'll select the highest value out of it and I think Point ये B. highest है point B the highest value is 2192.72 जो कि है point B पे that means point B coordinates like x1 is equal to 90 and x2 is equal to 144/11 will be your फाइनल आंसर मींस अगर ये क्वेश्चन उस तरह से थ्योरेटिकल फॉर्म में होता और उन्होंने पूछा होता कि प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट बनाए प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट बनाए तो आप आंसर लिखते हैं सर प्रोडक्ट ए जो है उसकी आप 90 यूनिट्स बनाइए और प्रोडक्ट बी की जो है वो आप अप्रॉक्सीमेटली 144/11 विच विल मेक इट टू अप्रॉक्सीमेटली 13.09 14 यूनिट्स लेट्स सपोज और 13 यूनिट्स विल आल्सो वर्क राइट इस तरह से हम आंसर करते हैं बट अभी सिंस हमें ये डायरेक्ट एलपीपी गिवन थी तो आप यही आंसर लिख देंगे तो भी ठीक होगा x1 इज इक्वल टू दिस x2 इज इक्वल टू दिस एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2192.72 these three will be your final conclusion or your answer बताइए किसी को कोई भी प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत सर सॉरी सर एक फोन आ गया था उसमें मतलब बिजी हो गए थे एक मिनट आप रिपीट कर सकते हैं क्या बताइए कहाँ से सर ये राइट हैंड साइड का जो ये लिखा ए क्या लिखा है मैक्सिमम जेड इक्वल ये 21 तो बात तब की है जब हमारा क्वेश्चन थियोरेटिकल हो इसको छोड़ दो आप ये हटा दो इसको कभी वो थियोरेटिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा क्या है आप ये 3 पॉइंट समझिए हमने हर पॉइंट पे z की वैल्यू निकाली इसमें कोई दिक्कत सुरोजीत नो सर मैक्सिमम जेड 2192.72 हाँ तो बस मैक्सिमम वैल्यू ये आई 2192 तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई जहाँ पे x1 90 है और x2 144/11 है मैंने उनको लिख दिया यहाँ फाइनल आंसर और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लिख दी यहाँ से उठा के ओके ओके सर ठीक है बताइए और किसी को कोई दिक्कत नहीं सो दिस इज ऑल फॉर टुडे